بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا۔ اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا حباب نامی حسن جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی کہ خوش اخلاق اور کمال سیرت تھا۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کی خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے، نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوشمگی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہے نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالبہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانشتہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلبیب بادہ نوشی میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ ایک نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی من پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس سے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہے یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محروم اور سگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی۔ بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت اور غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والد کو اپنے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب، قاب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آبا اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کیا اور کہا، بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سب کا دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا، میں نے سوچ وچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحت کی، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نام کا پلا ہوا ہے،
जिंदगी के मसाइल और तकलीफ का एहसास नहीं रखता। सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र नूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। इधर उस लड़के का बाप उसके इंतज़ार में कभी घर के अंदर जाता, कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। इस इंतज़ार में सूरज गुरूब हो गया और मगरिब की नमाज हो गई। जब लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर कर दी वापस आने में। बाप ने बड़े गुस्से में कहा कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए। उस लड़के के बाप ने जोरदार आवाज से कहा, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लाने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, पापा यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। उस यहूदी का लड़का रोज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था। यहूदी लड़के से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने लड़के से कुछ न कहा। कुछ दिनों के बाद उस यहूदी का लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि लड़के को करवट लेना मुश्किल हो गया और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला, मैं आपके पास आया हूँ और आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने उस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी कि मेरा लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चले, अपने आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा, लड़के की आंखें खुल गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, ये अब इस्लाम की मुक़द्दस अमानत है। काशानाए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधा सब उठाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर, उमर बिन खत्ताब और बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी मशहूर शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हैं। हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो कब्र तैयार हुई और कफनाया गया। हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए। कब्र में खड़े हुए काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई हुई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये इरशाद फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो हुजूर अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती मैं पंजा ही रखता। पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने उस लड़के को बोला था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उसके कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूर उस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। हज़रत इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो उसने 4 मकामा पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ देखी, तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और वस्फ का जिक्र पाया। उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो ये जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा कि अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पूरी हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स, बेहतर यही है कि तू उसे ना देखे। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल ब मंजिल चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सुलेमान से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हालांकि आपको इस दुनिया से सफ़र किए 3 दिन हो चुके थे। हज़रत सलमान इस बात से रोए और कहा, मैं तो उनका खादिम हूँ। वो बोला, आप कहाँ हैं? अब सलमान सोचने लगे, अगर विसाल की खबर सुनाता हूँ तो वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूँ कि मौजूद है तो झूठ होगा। बिल आखिर कहने लगा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास लेकर चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सब के सब सहाबा गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ये समझकर कि उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मौजूद होंगे, कहने लगा, अस्सलामु अलैका, या मोहम्मद का कलमा पुकारा, जिससे तमाम सहाबा में कोहराम मच गया और आह बका करने लगे और उससे पूछने लगे, तू कौन है जिसने हमारा जख्म ताज़ा कर दिया? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है, शायद तुझे मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रोज पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरे सफर की नाकामी, ऐ काश मेरी माँ मुझे न जनती। जन ही दिया तो काश मैं तौरात न पढ़ता, और वो भी पढ़ी तो काश आपकी तारीफ और तौसीफ पर नजर न पड़ती, और अगर ये भी हो गया था तो मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, यहाँ पर अली मौजूद है जो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारुफ कराएं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। वो बोला, मैंने तेरा नाम तौरेत में देखा है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप ना हद से ज़्यादा लंबे और ना ही ज़्यादा छोटे थे।
सर मुबारक गोल था और पेशानी कुशादा, आंखों की स्याह खूब स्याह थी, पलकें दराज थी, हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआ निकलती थी, सीने से नाफ तक बालों की लकीरें थी, हथेलियों पर गोश्त थे, कदमों के तलवे कदर गहरे थे, बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी थी, मस्त कोनियां और घुटने आपके शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सही बताया, तौरात में आपकी तारीफ और तौसीफ इसी तरह मौजूद है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सलमान जाओ, फातिमा से कहो अपने अब्बा का जब्बा जरा भेज दो। सलमान दरवाजे पर आए और आवाज दी, है फखरुल अंबिया के दरवाजे। अंदर हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे, लिहाजा दरवाजे को खटखटाना पड़ा। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की आवाज आई, यतीमों का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत सलमान ने अपना नाम बताया और हजरत अली का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा का जुब्बा कौन पहनेगा? हजरत सलमान फारसी ने सारा किस्सा सुनाया। आप जुब्बा निकाल कर ले आई जो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पकड़कर सूंघा, फिर दूसरे सहाबा इकराम ने, फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहता था, वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ऐ अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद है, यकता और यगामी, और तू बेनियाज है। और मैं भी ये गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ उसने फरमाया है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और उस पर ईमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज कर ले। ये कहकर वहीं गिरकर जान दे दी। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवाया। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।